हेलो व्हाट्सअप गाइस, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ना है मास्टर एफ बोर्ड की इंग्लिश विभाग भारती के चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फ्रंट पेज है, आप जानते हैं। फ्रंट पेज इंग्लिश विभाग भारती स्टैंडर्ड 11। ये आपका सेकेंड पेज, यहाँ पे अच्छा खासा दिया है कंपलसरी इंग्लिश। आप जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है एफ के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इंग्लिश विभाग भारती कम्युनिस्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 11। लिसन एक्टिविटली। तो चलिए हम पहले लिसनिंग के लिए देखेंगे। लिसन एक्टिवली एंड अटेंटिवली, एंजॉय, कॉम्प्रिहेंड एंड अप्रिशिएट अ वेराइटी ऑफ पोएम्स, गेट एन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स थ्रू लिसनिंग एक्सरसाइजेस, acquire global understanding of literacy and non-literacy audio text, develop the ability to listen for specific purpose, develop the skill of note taking while listening, understand general oral instructions, expose the student to different accepts and varieties of English, that is British English, American English and Indian English, understand different intentions like irony, sarcasm, wit and humor through the tone of the speakers. Comprehend and enjoy live as well as record presentations like songs, skate, movies, and plays. Understand oral communication without face-to-face interaction. Example: telephonic conversation, IVRs, Skype calls. Listen with comprehension to lectures, talk, conversations, news bulletins, interview, debates, and discussions. Identify the genre and register of a text after listening to it. तो यहाँ पे क्या दिया आपको लिसनिंग, यानी कि आपको एक्टिवली ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप घर पे बैठे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि अभी इस साल कोविड पेंडेमिक से आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ रहा है। स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उसमें आपको कभी कभी समझ नहीं आता, और क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की उसकी वजह से आवाज़ें कम आती हैं। तो इस वीडियो की मदद से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे कमेंट में डाल के पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं इस कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उन्हें अच्छे हेल्प हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ना दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग, यूज स्पोकन फ्लुएंटली इन डे टू डे कम्युनिकेशन, यानी कि हमें स्पोकन फ्लुएंटली कि डेली डे टू डे कुछ ना कुछ तो इंग्लिश स्पोकिंग करना चाहिए, जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। यू नो, when we spoke English day to day, it helps to much. Speak coherently, logically, fluently, competently, intelligibly on a given topic for reasonable period of time with appropriate body language. Answer question orally, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें orally देना पड़ेगा. We have to give answer orally. Make oral presentation on a given topic. You have to make a presentation on a given topic. Sometimes teacher will give you a topic on like Diwali. So we have to make presentation on Diwali. So we have to put title, and then we have to start with pictures, good picture of Diwali or diyas, crackers, etc. Then we start about Diwali. Diwali is the festival, so and so. Next, reading. You know, in day to day life, we have to read some books like that. We have to read this test books and lesson of these lessons. So we start now. And writing. In writing skill, we get formal letters, application, and emails. We have to write correctly and clearly, so we can get marks. If you have any queries, you can tell me in my comment box, so I can clear your comments or doubts. Now we will start on to the summit of DAW, because first lesson Linearly is omitted in 2021 due to COVID pandemic. You know, 75% syllabus reduced. There are 4 sections. In you are seeing this content.
The four section. First section is prose. Second section is poetry. Third section is writing skill, and fourth section is general drama. So let's start. On the stomach. We reach the top. तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आइस ब्रेकर यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको पहले किए होंगे, जिससे आपको इस लेसन के बारे में आइडियाज़ मिलते होंगे। तो आइस ब्रेकर सबसे पहले दिया आपको क्लाइंबिंग्स। ये सब के आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, पर आपको खुद से ट्राई करने होंगे क्योंकि आप इससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और लेसन आपको अच्छे से समझेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले लेसन के अबाउट के बारे में पहले देखेंगे। कहाँ बाबू ले जा पीछे मामी के पास। 29 मई 1914 टू 9 मई 1986। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 29 मई 1914 से उनका जन्म हुआ और उनका डेथ 9 मई 1986 में हुआ। नोन बाय बर्थ एज नामग्याल वांगड़ी एंड ऑफ्टन रेफर्ड टू एज सरपा टेंजिंग वॉज अ नेपाली इंडियन सरपा माउंटेनर। तो ये कहाँ से थे, ये नामग्याल वांगड़ी नेपाल से थे, ये नेपाल से थे। और सरपा टेंजिंग उन्हें कहा जाता है जो नेपाली माउंटेन्स यानी कि जो इंडियन माउंटेन्स को नेपाली माउंटेन्स को कहते हैं, जो माउंटेन्स को कहा जाता है सरपा, उसे माउंटेन्स को सरपा टेंजिंग कहते हैं। जैसे कि टेंजिंग क्या था, माउंटेन है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं सरपा टेंजिंग यानी कि इंडियन माउंटेनर टेंजिंग। ही वॉज one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29 मई 1953। तो इन्होंने कब स्टार्ट किया माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई क्लाइंबिंग करना, 29 मई 1953 को किया। On the summit, we reached the top. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to the top on this day. That morning, I remember thinking what I was thinking. I was to get to the top, even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we entered. यानी कि 9 डे था, यानी कि 9 ऑन फ्राइडे वो निकले थे कैंपिंग के लिए। तो उन्होंने डिटरमाइन किया कि वो कैसे भी टॉप पे पहुंचेंगे, चाहे वो भले डाई हो जाए, तो वहाँ टॉप पे पहुंच के रहेंगे। वो इसके बारे में बता रहे थे कि 9 फ्राइडे 1953 को वो टॉप पे पहुंच रहे। आई वुड टेक लीड एंड देन हिलेरी, द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। ही इज़ द एंकर, द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप एंड ब्रेक्स द वे। तो क्या करते थे, कभी हिलेरी लीड करती थी, कभी टेंजिंग करते थे। जैसे कि एक दूसरे को लीड करने से जैसे कि आगे कुछ पड़ाव या कुछ खतरा रहेगा तो उसको आगे वाले को मार पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे दोनों जन साथ कहीं गड्ढा या कुछ रहा उसमें गिर जाएंगे या कुछ रहा, तो इसके से प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए दोनों, एक कभी हिलेरी लीड करेगी, कभी टेंजिंग लीड करेगा। द मैन हु फॉलोज डिफिकल्ट, यानी कि अगर इसको लीडिंग करना बहुत डिफिकल्ट जॉब था, क्योंकि एंकर की तरह उनका काम करता है, क्योंकि उनको लीड्स कट करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बीच बीच में रास्ता कभी हिलेरी करे कभी टेंजिंग करे। इन माई पॉकेट I had 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations, Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. तो कर्नल हंट ने उसे 3 ब्रिटेन फ्लैग दिए थे, एक था यूनाइटेड नेशन, एक नेपाल और एक ब्रिटेन। और इस तीनों फ्लैग को कहाँ प्लांट करने के लिए, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े शिखर पे माउंट एवरेस्ट पे उन्हें प्लांट करने के लिए दिया था। दीज 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ही सेड, व्हेन यू एंड हिलेरी रीच द टॉप, पुट देम एट द पीक। आई एम श्योर दैट यू एंड हिलेरी आर गोइंग टू डू इट। तो कर्नल हंट ने यह कहा कि तीनों फ्लैग को वहाँ पे कैसे भी वहाँ पे पहुँचाना है, और जानता हो कि तुम दोनों पहुँच जाओगे। I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with other flag. I had to ask Colonel permission in his capacity as leader of the expedition. तो कर्नल हंट लीडर थे, इसके लिए उन्होंने परमिशन लेना पड़ेगा कि इंडियन फ्लैग को साथ में वो वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं या नहीं। तो कर्नल फ्लैग ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कर्नल हंट सेड, बाय ऑल मीन्स, आई एम ग्लैड टू नो
दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी की बात है और ये गर्व की बात है कि तुमने इंडियन फ्लैग को लेके आया साथ में। After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a straight line of rocks. This was slow and difficult. तो यानी कि वो धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि जैसे कि अगर सीधे रास्ते पे जाए भले शॉर्टकट रहे पर वहाँ पे नहीं जा रहे, क्योंकि वो अगर साउथ पे तो वो वेस्ट से जा रहे हैं, क्योंकि साउथ है वो जितना रास्ता अगर उस रास्ते से जाए तो वो और ख़तरनाक डिफिकल्ट पड़ता है। और जैसे कि वो अगर उस रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते जैसे कि साउथ है तो वेस्ट के लिए घूम के जा रहे हैं, तो उनको आसानी से थोड़ा धीरे धीरे जाने के लिए आसानी होगी, थोड़ी ईजी पड़ेगी। Once we had cleared this, there was not bearing our way to top, but a snow-covered incline sloping less and less it neared to the top. यानी कि वो बहुत नज़दीक पहुंच गए थे स्लोपिंग के टॉप के लिए। अब स्लोपिंग का मतलब क्या है? स्लैंटिंग अप और डाउन। अगर आपको कोई भी वर्ड से डाउट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे कमेंट में जरूर लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। These last 60 or 70 feet up the top were not dangerous. यानी कि वो 60-70 फीट अभी पार कर चुके हैं, तब उसके बाद ये आर्टिकल लिखा हुआ है। बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेंड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। यानी कि वो 60-70 फीट पार करके तो भी वही सीढ़ियाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी नज़दीक पहुँच गए तो बाद में जल्दबाजी में कभी खतरे में पहुँच जाते हैं। इसके लिए मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूँगी, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। Slow and steady wins the race. Did the last 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. We were tied up with the rope. Most of the time the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it taut. यानी कि ये और फ्लैरी दोनों 50 फीट के लिए दूरी में थे पीक के, और ये रोप की मदद से चल रहे थे, और रोप लूज में था, पर धीरे जैसे 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 मुश्किल रास्ता पड़ रहा है वैसे से उसको टाइट हो जा रहे हैं। द रोप वाज अ सिंबल, इट टाइड अस टुगेदर, यानी कि ये बता रहे कि रोप एक ऐसा सिंबल है जो हम दोनों को टीम अप की तरह दिखा रहा है। वन कुड नॉट मूव विदाउट द, तो उनकी एकता दिखा रहा है कि ये वो अकेले नहीं है, एक टीम है। जैसे रहते कि एक दो नहीं है, वो पूरी एक टीम है, इस बारे में बता रहा है। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम हु वाज फर्स्ट, वी वर विद इन रीच ऑफ द टॉप ऑन द समिट। I did not think of who was going to first. I am sure that Hillary was not thinking that. Climb takes all our attention. We have many more important worries. तो वो क्या बोल रहे हैं टेंजिंग नोएगा कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आप कौन फर्स्ट आएगा, तो कई जगह पूछे भी जाएंगे कि फर्स्ट कौन है। तो टेंजिंग नोएगा को इस पर कोई नहीं था कि कुछ थिंक नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँ कि हिलेरी फर्स्ट आए। तो ये वो भी सोचते थे कि हिलेरी भी यही सोचती होगी कि वो उसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कि चाहे वो फर्स्ट आए चाहे मैं आऊँ। उसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे अटेंशन से क्लाइंबिंग के ऊपर। ये अभी ध्यान उस पर जाएगा तो उनका क्लाइंबिंग पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी चीज़ पर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो ही वो काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। What does it matter whether I reach the top first or Hillary? Our main thought was the both of us reach the top. यानी कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई मैटर नहीं था इस पर कि मैं पहुंचूं चाहे हिलेरी पहुंचे। हमें ये मैटर था कि हम कैसे भी करके टॉप पहुंचे। If there had been a difference of 1000 feet between us, then one could make the claim that he was first. But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. तो यानी कि when we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. We walked it over Hillary, Colonel, and Hunt and I. We agreed that the talk was childish. यानी कि जब वो काठमांडू पहुंचे तो उन्होंने कंट्रोवर्सी में ये बोला कि वो और कर्नल हंट और एग्रीड हो गए दोनों चाइल्डिश की तरह। So we made a pact and each of us signed it in the office of the Prime Minister of Nepal. Each one has signed his own statement. I have a copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. यानी कि दोनों जन अपने पॉकेट में एक दूसरे के कॉपी रखें कि दोनों जन पहुँचे हैं। It reads Kathmandu, June 22, 1953. On the main Tenzing Sapa, I are high camp at Mount Everest for our attempt on the summit.
As we climb upward to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. We crossed over the south summit and moved along the summit ridge. We reached the summit almost together. We embraced each other and overjoyed at our success, and then I looked photograph of Tenzing holding aloft the flag of Great Britain, Nepal, the United States, Nepal and India. अब यहाँ पे क्या सरपा जो हिलेरी ने नोट स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा है, मैं तेंजिंग सरपा माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे और हमने क्लाइंबिंग किया एक दूसरे को लीड करके, और ये भी नहीं कि कौन फर्स्ट पहुँचा, ये नहीं है, हम दोनों ही फर्स्ट पहुँचे साथ में समिट पे। और हम दोनों ने एक फ़ोटोज़ ली जहाँ पे तेंजिंग ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और यूनाइटेड स्टेट इंडिया की फ्लैग को प्लांट्स कर रहा है। There is another paper like this in English signed by me. Thus we will not take part in any controversy. As the statement says, Hillary and I embraced when we reached the top. We did as our bulky equipment would let us. I remember saying him too, we have done it, but we couldn't hear. We had our oxygen mask on. अब वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे जितने जितने ऊपर जाते वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, उसके लिए ऑक्सीजन मास्क उन्हें पहनना पड़ता है। चलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।